Hello dear students, so this video will talk about p-n junction diode, what it is all about and what are the critical processes which happen during the formation of a p-n junction diode. Okay, it's a bunch of theory, so just stay put because at the end when you understand everything, all you have to do is just memorize few key points, right? While for understanding, I'll take you through the entire process, but in the end we will summarize what happens and what that is what we need to remember, and that will be our takeaway. Okay, so what is a p-n junction? We have studied about p and n type semiconductors. So when you create a junction like this, there's one side p type, other side n type, and there are two terminals like this. So typically you call this p-n junction diode, but so this part is just p-n junction, and with the two terminals it is called p-n junction diode. The circuit symbol of this is this, right? This is an arrow which shows the p type. This arrow is showing p type and this bar is n type. You can remember this like n is like a wall, right? Like a negative thing. So it is easy to memorize if you want to. Otherwise, it's not very difficult. But can you create a p-n junction? Just you could take a p type, n type, and you just glue them together and you create a p-n junction. No, it is not like that. It is an atomic process, right? So the layers of atom needs to mingle with each other at a atomic level, right? So you cannot create a p-n junction like this, right? Just by gluing together one piece of p with one piece of n. What we have to do is we have to take a thin wafer of p type, very thin wafer of p type, and then that wafer has to be carefully doped with n type from one side, right? So that there is an interaction at the atomic level. Careful. So this is a very delicate manufacturing process which requires a lot of diligence and care. So that's how we create a p-n junction diode. Okay, so now what is important for us? Important for us to understand what happens when the p-n junction is initially formed. So there are two important processes which happen when the p-n junction is formed. Always remember there are two critical processes which happen during the p-n junction formation. The first process is diffusion. Diffusion is the first process which starts, and as the time progresses, diffusion gives birth to drift, right? We'll understand how these two processes are connected. But first diffusion starts and then drift starts, right? So we have to understand diffusion and drift in a bit detail. So first let's go through what is diffusion. So here you have p type, right? On the p side you have holes on majority, holes are majority, and on n type where we have electrons which are in majority. This we know, right? We have understood p-n junction diode, p-n junction separately, semiconductors. P type has holes as majority while n type has electrons has majority, right? So what should happen, right? We have understood a process in chemistry called diffusion. Diffusion happens from higher concentration to lower concentration. So as because you can see there is a concentration gradients of hole, right? The holes are mainly here and very less here. So holes will start traveling from, so we can say the holes will travel from p type to n type because of the concentration gradients, and the electrons will flow from n type to p type. So this is holes and this is electron. So you can see because of the concentration gradients, as soon as the p-n junction is formed, यहाँ पे ये holes और electron का movement शुरू हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे holes higher concentration में है, यहाँ पे lower concentration में है. So diffusion मतलब क्या होता है? Movement of something from higher concentration to the lower concentration, and that's what it starts. Electron का reverse होगा, n type में majority में है वो, तो वो n type से p type में flow करेंगे. This is clear, right? Now जैसे ही होगा तो उसके बाद क्या स्टेटस, थोड़ी देर बाद क्या स्टेट पहुंचेगा वो समझना जरूरी है हमारे लिए. पीएन जंक्शन की स्टेट थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी होनी चाहिए. Let's call this as, this is the junction boundary. ठीक है, this is the junction boundary. This is P and this is N. So when holes
क्रॉस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। एन साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जैसे यहां से एक होल यहां मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इन अबंडेंस, आप जंक्शन को जस्ट फॉर्म किया भी है आपने, तो अभी भी क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, सो होल एंड इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन। सो नियर द जंक्शन बाउंड्री देयर विल बी लॉट ऑफ रिकॉम्बिनेशन विच हैपन। सो जंक्शन बाउंड्री पे यहां पे क्या होगा, दोनों जगह रिकॉम्बिनेशन होगा। मतलब किसका रिकॉम्बिनेशन, होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आप इन एसेंस सोचो कि हुआ क्या है, यहां पे हुआ ये कि पी साइड पे एक होल कम हो गया, ठीक है, और एन साइड पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सो पी साइड पे क्या कम हुआ है, होल में क्या था, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि जब होल्स सारे इधर थे तब ओवरऑल हमारा पी टाइप क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन पेयर्स, राइट। तो अगर एक यहां से होल जो पहले यहां पे था अब यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब नियर द जंक्शन बाउंड्री गाइस, आपको यही समझना है, नियर द जंक्शन बाउंड्री देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द पी साइड। एंड सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं तो यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट, when a p-n junction is formed, this is what happens, and we are trying to best explain this with our known, right, concepts. इधर से इधर होल गया, होल डिफ्यूज मतलब न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे बहुत सारे होल्स हो, धीरे धीरे जब यहाँ मूव करेंगे तो इधर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जंक्शन बाउंड्री पे, और यहाँ पे जंक्शन बाउंड्री पे नियर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से शो करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। टिपिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दिस इज द वे वी शो, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि पी टाइप के जो कि यहाँ पे होल्स हैं वहां पे नेट नेगेटिव चार्ज आता है, एन टाइप जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब ये प्रोसेस, दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। तो ये कब, क्या ये हमेशा चलती रहेगी, क्या होल यहां से यहां मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते रहेंगे, पूरा जंक्शन हमारा मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब सेमीकंडक्टर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज जो क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्रिएट कर दी, एक नया पोटेंशियल हमने क्रिएट कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ग्रेडियंस देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रिफ्ट को बर्थ देती है। ड्रिफ्ट इज द नेक्स्ट प्रोसेस। अभी ड्रिफ्ट क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जरा देखिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहां से अब ये क्या हो जाएगा स्टार्ट, इधर से इधर होल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं, तो उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो लास्ट प्रोसेस डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, होल्स पी से एन जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी आ रहे थे। अभी एक उल्टी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है हमारे पास, रिवर्स प्रोसेस विच इज ड्रिफ्ट। अब क्या हो रहा है, होल्स यहां से यहां स्टार्ट हो गए हैं एन से पी, और इलेक्ट्रॉन्स पी से एन आना स्टार्ट हो गए बिकॉज ऑफ दिस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, राइट। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली, एंड पोटेंशियल को इन पर्टिकुलर बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बैरियर पोटेंशियल क्यों क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट हुआ है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया है ये आता ही नहीं, और अगर ऐसा होता नहीं तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो पहले स्टार्ट हुआ डिफ्यूजन,
थोड़ी देर तक डिफ्यूजन होने के बाद धीरे धीरे ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है और एक पॉइंट पे आके ये होल्स को इधर उधर मूव करना शुरू कर देती है और इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा मूव करना शुरू कर देती है। तो अब डिफ्यूजन को काउंटर करने के लिए एक नई प्रोसेस आ गई है, वो है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, डिफ्यूजन मतलब जहां होल्स मूव कर रहे हैं P से N और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं N से P, और ये क्यों हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वही डिफ्यूजन का मेन रीजन है। लेकिन ड्रिफ्ट क्यों स्टार्ट हुआ है, बिकॉज डिफ्यूजन होने के बाद there will be some net positive charge near the junction boundary on the N side, some negative charge near the junction boundary on the P side. Because of this charge creation, charge development plus and minus, there's electric field created, and this electric field starts moving holes from N to P and electrons from P to N, right? That is called drift. नाउ क्या ऐसा हमेशा चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट पे आके ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, राइट? तो यहां पे हमारे पास दो करंट बनती हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि दो करंट डेवलप हुई है। पहली करंट जो डेवलप हुई है वो है डिफ्यूजन, और दूसरी करंट जो डेवलप हुई है वो है ड्रिफ्ट, राइट? अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपने पीएन जंक्शन को बनाया, उसको छोड़ दिया थोड़ा टाइम के लिए, तो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पे डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। दैट इज द नोन फैक्ट। आपको याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में फिर से मैं ट्रिक कर रहा हूं, स्टार्टिंग में सिर्फ डिफ्यूजन था, ड्रिफ्ट जीरो था। डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से चार्जेस डेवलप हुए, और उस चार्जेस डेवलप होने की वजह से ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट बढ़ा, ठीक है, और डिफ्यूजन कम होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन, आप खुद सोचो, डिफ्यूजन कहां से कहां हो रहा था? P से N, राइट? या फिर मतलब होल्स का P से N। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो ये होल्स का मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगी ना, ये होल्स को यहां आने से रोकेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होल्स को यहाँ पे रेपेल करेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज रेपेल करेगा। इनफैक्ट इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस पोटेंशियल का जो डेवलप होता है, इसका नाम भी हम बैरियर पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि ये रोक रहा है डिफ्यूजन को। तो स्टार्टिंग में तो डिफ्यूजन फुल स्पीड से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चार्जेस है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चार्जेस डेवलप होंगे तो डिफ्यूजन की स्पीड कम होती जाएगी और ड्रिफ्ट की बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक पीएन जंक्शन जो कि अनबायस्ड है, अनबायस्ड मतलब जिसपे हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, राइट? वहां पे नो नेट करंट फ्लोस एट इक्विलिब्रियम, नो नेट करंट। जो नो नेट करंट हम बोल रहे हैं, आप ध्यान रखिए, नो नेट करंट का मतलब कहीं ये नहीं है कि कोई करंट ही नहीं है। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट चलता रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होते हैं। उसकी वजह से देयर इज नो नेट करंट इन अ पीएन जंक्शन इन अंडर अनबायस्ड कंडीशन। ओके, अब एक चीज हमें और समझनी है, यहां पे एक चीज हमें और समझनी, कुछ टर्म्स यहां पे नियर जंक्शन बाउंड्री आप देख रहे हैं। नियर जंक्शन बाउंड्री, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, राइट? ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये डियर चार्ज फ्री रीजन है, जो कि है तो हमें यहां पे प्लस और माइनस दिखाया है चार्ज, क्योंकि ये नेट चार्ज है। लेकिन अल्टीमेटली इस रीजन में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन हो चुके हैं। क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन हो चुके हैं। तो ये इन ओवरऑल अगर आप देखो ओवरऑल, तो ये रीजन इज चार्ज फ्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो चुके हैं। तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीटेड या फिर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन ये चार्ज फ्री है, मतलब इसमें सारे चार्ज डिप्लीट हो गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और इस रीजन का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। भाई, जिस पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्ज ही नहीं बचे, तो वहां का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होगा। यही तो होता है डिफरेंस इंसुलेटर और रेजिस्टेंस, इंसुलेटर और कंडक्टर में, राइट? कि भाई कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री चार्जेस हैं तो वहां रेजिस्टेंस कम है, इंसुलेटर में नहीं है तो वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें आपको याद रखना है, ये बहुत बड़ा टेक अवे आपके लिए। डिप्लीशन रीजन is first of all it is a region of no charge, charge free region, plus it has got a very high resistance.
दिस रीजन गाइस, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। और ये जो W दिखाई गई है ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, दिस इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, W इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। V नॉट आपको दिख रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस हायर से लोअर, V नॉट, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये E जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको भी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। इट हैज गॉट नो पर्टिकुलर नेम, मेनली जो है बैरियर पोटेंशियल टर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड द प्रोसेसेस व्हिच हैपन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो याद रखना आपको डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, और दोनों में क्या क्या चीजें की हैं, कौन डिफ्यूजन में होल्स कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट में कहां से कहां मूव कर रहे हैं, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये सारे आपको चीजें दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, तभी आप फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। थैंक यू।